ये है कि कोई भी लॉ है उसके पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं और वो बेस्ड ऑन मोरालिटी। So, जो भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो सर्टेन इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करे, वो होल सोसाइटी के। दे हैव टू इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हस्तोनीस के अंदर हमारी ये अदल आदल और अदालत की ये एक सीरीज इदारे ने शुरू की थी। और जिसमें हमने इब्तदाई तौर पे जो प्रोग्राम शुरू किए थे, उसमें अदल के हवाले से कुछ इब्तदाई प्रोग्राम शुरू किए थे। उसमें हज़रत अली के कुछ फैसले पढ़ के सुनाए थे, और उनका बताओ काजी तारफ़ करवाया था। और इस तरह वो सीरीज़ जो है वो उनकी हद तक मुकम्मल हुई। तो अब हस्तनीस की तरफ से अदल आदर और अदालत में गेट वे ऑफ जस्टिस के नाम से ये दूसरी सीरीज़ है, जिसमें आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। वैसे तो ये यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में वकालत करते रहे हैं, फिर ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और कॉरपोरेट साइड पे और कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे इनका हल्का है ज़्यादा रिसर्च का और काम का। और आज ये किताब का तारुफ पेश करेंगे, जिसमें सीरीज ऑफ टॉक्स बेस्ड ऑन द बुक लॉज जजमेंट बाय विलियम लूसी, एक ऑथर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम इंग्लैंड में ही वो पढ़ाते हैं। और ये किताब उनकी उस पर इन्होंने कुछ मतालिया किया, कुछ रिसर्च की। और उसमें जो कुछ ख़ास उन्वानात हैं जिस पे ये बात करेंगे कि कानून क्या है, कानून की मंशा क्या है, कानून कैसे बनता है, कानून के माखज़ क्या हैं, कहाँ से ये कानून आया, और बरतानिया की अदालतों से कानून होता हुआ ये हमारे ये बरसगीर पाक व हिंद में कैसे पहुंचा। और उसके बाद फिर ये इसके जो थीम है किताब का, वो भी मैं एक लाइन जो टाइटल पे ही हमारे जो सोनीस ने पेश किया उसमें ये मुख्तसर अंदाज में भी लिखा है। इट द बुक shows that law's abstract judgment is closely related to important juristic conceptions of personhood, responsibility, and impartiality, and that these notions are not without moral significance. ये इसका मुख्तसर सा मुझे तारुफ पेश करने का कहा गया। तफसील में बात करने के लिए मैं अपने हमारे मेहमान जो हैं सैयद हसनैन रज़ा साहब, उनसे अब मैं इल्तमास करता हूँ कि वो इसकी तफसील में भी जाएं, कानून की मंशा बयान करें, कानून का जो आने का जो है बनने के भी जो मराहल हैं, ये तफसील सारी भी बयान करेंगे। तो शामिल करते हैं इनको गुफ्तगू में। जी सर। Thank you very much, Shiraz Saab. So, I would like to start today's session. Basically, this is an introductory session, and I would love to start with some verses from Gulistan Sadi. It is basically the reflection of our topic, which we will discuss in this series of lectures or sessions. Okay? So, Bani Adam Azai Yak Pakarand. Human beings are parts of Kedar Afrinash Ziyat Goharan, a whole and of one essence. Chu Uzhai Bedart Avarat Ruzka, together so interconnected. Vikar Uzhar Ha Ranumanand Karar, that when pain afflicts one, to cause mehnat tigaran bhi hami, all others are affected. Na shayad kinamat na hand adami, the one with no empathy is not a human. Interesting.
So, coming to our topic, laws judgment. So, I will just read some script, okay? Please, please. And then I will try to explain one of them. Okay? Law's judgment elucidates and defines a feature of contemporary law that is currently either overlooked or too clearly discussed as morally troublesome or historically anachronistic. That feature is the abstract nature of law's judgment. And its three components how show that when law judges us, it often does so in ignorance of our particular characters and abilities on the one hand, and in ignorance of our context and circumstances on the other. Law's judgment is thus insensitive to all or much that makes us the particular person we are. The book explores various connections between this mode of judgment and some of our most important legal and political values. It shows that law's abstract judgment is closely related to important juristic conceptions of personhood, responsibility, and impartiality, and that these notions are not without moral significance. The book also examines the connection between modern law's judgment and three of our most important political values, namely dignity, equality, and community. It argues that if we value particular conceptions of dignity, equality, and community, then we must also value law's judgment. Illuminating these connections, therefore, serve a double purpose. First, it makes a case against those who counsel liberation from law's abstract judgment, and second, it redirects attention to the task of morally evaluating law's abstract judgment in its own term. So the basic issue जो है वो जो हम as a student of law, lawyers, judges और as a whole society face करते हैं वो ये है कि क्या जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है और जिस अंदाज में वो बना रही है तो एज इट इज हमें वो लॉज कबूल करने चाहिए दैट इज द फाइनल अथॉरिटी और देयर आर सम इमेजिनेशंस behind those laws, and those imagination basically provides us the valuable insights that these are certain parameters, and these parameters basically reflects the basic values of the society. Okay, so there are different values of society, but certain values of society are very, very important. Number one, it is justice, equality, okay, dignity, and community. Okay, so when we just try to make law or the superior courts like the High Court and the Supreme Court, because constitutionally they have the authority to interpret law, what the parliament makes. So what is the tool for that? To check the legality of the law. So the basic purpose to start this session is to understand those background values. Okay, so there is always dispute in the court, in the parliament between politics and moral values. So there, as Shiraz Saab is a senior lawyer and he can understand very well, there are many legal provisions which जिसको हम हमेशा चैलेंज करते रहते हैं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में
तो क्यों करते हैं और उनकी बेसिस क्या होती है। तो यही वो बेसिस है। और फिर इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल लॉ में कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, सिविल लॉ में इसकी कैसे एप्लीकेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कैसे एप्लीकेशन होती है, और अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि मैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं बेसिकली, हमारी सबकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो तो एक जैसी हैं। और ये जितने भी लॉज हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और वो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, वो बाउंड हैं कि उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में वो वाले प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। What is the responsibility of citizens towards the legislature? देखें, अब यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When we talk about democracy, what is democracy? Democracy is basically ruled by the people. Okay? So, parliament क्या करती है? Parliament basically is a representative of the people. So, when we choose the member of parliament, so parliament, and they go to the parliament and they work on behalf of the people. Okay. So when people are educated, well versed, they are well aware of their rights and duties, and they can, okay, uh, choose the right person who can represent them, okay, over there, and they can make a good law, which is really the reflection of the people over there. तो पाकिस्तान में इशू ये है कि बहुत सारे हमारे लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि भाई हमने लॉ, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का इशू है, लॉ इंग्लिश में है, हमारा कल्चर पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पख्तून इस तरह है। तो एक तो ये एक गैप है, और दूसरा अगर उनको ये पता चल जाए कि भी ये वाला जो लॉ बनाया गया है, इस लॉ के पीछे बेसिक रियल, हाँ, असूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, तो वो उस लॉ की लीगैलिटी को अंडरस्टैंड करने में और एक्सेप्ट करने में ये उनके लिए बहुत बेहतर हो। अब जो हम कहते हैं ना कि ये वाला लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो जॉब है वो बहुत सारा कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लॉ इन्फोर्समेंट में फिर वो वाले जो है ना एनर्जीज नहीं लगानी पड़ेगी, वो किसी और जगह फोकस करें। तो लेकिन द कंट्री लाइक पाकिस्तान, भी हमारे यहाँ क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है, ये एक मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं है लाइक यूरोप एंड अमेरिका। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जब भी लॉज बनाए जाते हैं उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल या सर्टेन इंडिविजुअल्स के वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और लॉ उनके लिए एक टूल है। So through that tool, they just protect their self vested interest. Okay. तो जब अवाम को डायरेक्टली एक चीज का अवेयरनेस होगी, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी डिसीजन कर सकते हैं, और जो जजमेंट्स हमारी पास होती हैं उसमें भी ज़्यादा बेहतर। अब आप देखें कि जो वो वेल अवेयर हैं क्लाइंट्स वगैरह, वो उनके साथ बिहेवियर लॉयर्स और जजेस का ज़रा मुख्तलिफ होता है, तो एज कम्पेयर टू द ले मैन, ठीक है, जिसको वो बिल्कुल इन चीज़ों का वो नहीं है। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन पे इन्होंने रोशनी डाली है। जी। अब ये शुरू कहाँ से करते हैं बात, कि पहले तो बात यह है कि जब लॉ के एड्रेसेस कौन है जी। अब ये बेसिकली स्टार्ट ये करता है कि हिस्टोरिकली एक फ्यूडल सोसाइटी थी, तो फ्यूडल सोसाइटी में सब्जेक्ट्स होती थी, सिटीजन नहीं थे। तो जो रूलर होता था वो अपनी विल को इम्पोज करता था, वो बादशाह की सूरत में, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर की सूरत में, ठीक है। अब वो कोई होली पर्सन भी होता था, जैसे यूरोप में होली चर्च, चर्च था, ठीक है, उसके जो भी वर्डिक्ट होता था उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो जो वर्ल्ड इवॉल्व किया, ठीक है,
तो फिर हम फ्यूडल सोसाइटी से निकल के एक लिबरल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आए, जिसमें हम सब्जेक्ट से सिटीजन बने। ठीक है। और फिर वहां से फिर राइट्स एंड ड्यूटीज का कंसेप्ट इवॉल्व होने लगा, कि जब हम सिटीजन हैं तो देन वी आर ऑल इक्वल। फिर वो नोबैलिटी और एक कॉमनर वाला जो कॉन्सेप्ट था इंग्लैंड में, तो ये चीज हम नो मोर एक्सिस्ट। तो इसलिए फिर हमने अब जब एड्रेस करना है इंसान को, तो सबसे पहले हमने उसको कुछ नाम देना है। तो फिर उन्होंने कहा कि भी हम उसको पर्सन के नाम से पुकारेंगे, और उस पर्सन को फिर हम डिफाइन करेंगे लीगल टर्म्स में कि वो पर्सन है कौन। अच्छा, पहले एक नेचुरल पर्सन होता था, फिर जो ही दुनिया इवॉल्व हुई तो फिर आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, इन द शेप ऑफ कंपनी, कारपोरेशन, in the shape of limited liability partnership। ओके। तो इसी तरह फिर क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, तो उस मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली फिर लॉज भी बनाने हैं। तो अब आपको ये चीज पता होगी कि 2020 में एक लॉ बनाया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन का एक इशू आ गया था, ट्रस्ट एक्ट 2020। ठीक है, जिसमें टैक्सेशन का इशू था। ऐसे तो अब वो लॉ, मैंने उसकी ओपिनियन बनाई थी, और वो हमने सुप्रीम कोर्ट भी भेजी थी, कि ये बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी है। और उस इनइक्वालिटी को हमने जस्टिफाई करना था कि कैसे नेचुरल पर्सन इज इक्वल विद द आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे फिर रीजनिंग आ जाती है। इसमें लीगल पर्सन दोनों को आपने डिक्लेयर करवाया। यस यस, मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा वो, प्लीज। ठीक है, आने वाले जब पर्सन की तरफ आएंगे तो मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। और वो ओपिनियन मैंने एक जर्मन इंस्टीट्यूशन में भी भेजी है, वहां भी पढ़ी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी लॉ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, और वो बेस्ड ऑन मोरालिटी। और जो सुप्रीम वैल्यूज हैं वो है इक्वालिटी, डिग्निटी एंड कम्युनिटी। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, हम कहते हैं वी द पीपल। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ें, वी द पीपल, व्हाट इज वी द पीपल? वी द पीपल मीन द होल कम्युनिटी। सो जो भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, वो सर्टेन इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करे, वो होल सोसाइटी के, बेस्ड ऑन इक्वालिटी हो, बेस्ड ऑन जस्टिस होगा, बेस्ड ऑन डिग्निटी हो, बेस्ड ऑन कम्युनिटी हो। तो इसलिए जो वर्ड ऑफ द पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है, वो वर्ड जो है वो हर्फ आखर नहीं है। ठीक है, उसको फिर देखना पड़ता है। यही काम लॉयर का होता है और जजेस का होता है, कि क्योंकि लॉयर्स और जजेस बेसिकली स्टूडेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। दे हैव टू interpret the law according to these fundamental principles। ठीक है। और फिर ये हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ, अब जैसे बेल का एक इशू होता है। बेल में ये एक सबसे अच्छी मिसाल है, उसमें ये तीनों प्रिंसिपल आ जाते हैं। इक्वालिटी आ जाता है, उसमें डिग्निटी आ जाता है, उसमें कम्युनिटी आ जाता है। कि हम उसमें कहते हैं कि भी इसकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो इसलिए ले रहे हैं कि ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। क्योंकि अभी वो डिक्लेयर तो नहीं हुआ मुजरिम, अभी तो सिर्फ इल्जाम लगा है। तो अगर आप अभी से उसको, ठीक है, मुजरिम बना के बिहाइंड द बार डालेंगे, तो वो सोसाइटी में डिक्लेयर हो जाएगा, ये उसकी ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। सही। ठीक है। तो इसलिए फिर हम कारपोरेट लॉज की तरफ आएंगे, कि ये जो कारपोरेशंस होती है, अब जैसे वो ट्रस्ट एक्ट बना है, तो उसमें यही इशू था कि ट्रस्ट आर्टिफिशियल पर्सन भी वही काम कर रहा है। ठीक है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम भी कर रहा है। ठीक है, वो मुआशरे की बेहतरी के लिए भी काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो क्यों उसको जो है इग्नोर किया गया है और नेचुरल पर्सन को इम्पोर्टेंस दी गई है? तो ये अनजस्ट लॉ है। लिहाजा ये वाली स्पेसिफिक प्रोविजन जो है, इसको वॉइड करा दी। ये अब एडिशन की गई है, पहले लीगल पर्सन ही कर सकता था। पहले उन्होंने जो पर्सन की डेफिनेशन की हुई थी, उसमें दोनों फॉल करते थे, हाँ। आर्टिफिशियल और नेचुरल।
अब उन्होंने कहा कि नहीं, नेचुरल पर्सन को ये प्रिविलेजेस हासिल हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं है। चेंज कर। यस। तो अब वो इसी प्रिंसिपल पे चैलेंज जब भी होगा, वो तो हमने एक ओपिनियन तैयार की थी, तो जब भी वो चैलेंज होगा उसकी बेस इक्वालिटी है। क्वालिटी और तो अच्छा। और आर्टिकल का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 25A मेरे ख्याल से, उस बेस पे वो चैलेंज हो। क्वालिटी तो लोगों की है ना, कंपनी कहाँ से लोगों की। वो इस तरह हमने किया है ना कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, जब वो इवॉल्व किया है तो उसमें नई नई चीजें आई हैं, जैसे कंपनी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको फिर लॉ ने एड्रेस करने के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। यस। ठीक है, इसी तरह फिर अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गई है, उसको भी एक आर्टिफिशियल पर्सन का टाइटल दे। तो इसमें फिर हम ये चीज देखेंगे कि पर्सन से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम क्रिमिनल लॉ में देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में ये जो तीन बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये पर्सन पे कहाँ कहाँ। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि किसी इंसान पे एक FIR होती है और उस पे एक इल्जाम लगाया जाता है, अभी वो कन्विक्टेड जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये प्री अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया है? दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दीज बेसिक, on the basis of these three principles. Okay? उसमें लिबर्टी भी आ जाती है। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे सर। अब इश्यू ये है कि जो हम जनरल पब्लिक है वो तो सिर्फ लॉ के वर्ड्स को देख रही है ना, वो उसकी स्पिरिट को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, जिसकी वजह से एक इश्यू बन रहा है कि जो बेसिक एक पीछे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती है और उन्हीं की बेस पे एक सोसाइटी, एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनती है, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वो ऐसे अंडरस्टैंड नहीं हो सकते। उसको लीगल प्रोविजंस के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू हम इधर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जजेस जब अपनी जजमेंट पास करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब एक कंटेस्टेड केस आता है, ठीक है जी, तो उसमें दो पार्टीज हैं और दोनों कह रहे हैं कि जी मेरा राइट है, तो फिर किस बेस पे फैसला होता है? तो वो वाले प्रिंसिपल्स जब तक नहीं अंडरस्टैंड होंगे उस वक्त तक आपको लॉस भी समझ नहीं आएगा, आपको जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आएगा, आपको प्रोग्रेसिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं। अब यहाँ पे मौला अली का एक फरमान है कि मौला फरमाते हैं कि आप कुफ्र से तो हुक्मरानी कर सकते हैं, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी से नहीं कर सकते। और आज की आप मॉडर्न स्टेट्स को देखें, हमारे सामने जितनी भी मॉडर्न स्टेट्स हैं, आप वहाँ के जस्टिस सिस्टम को देखें, एग्जैक्टली वो इस कॉल पे पूरे उतरते हैं कि कुफ्र होगा लेकिन वहां पे जस्टिस है। ठीक। पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा एक इशू बना। चाहे अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम आगे जाके केसेस को सामने रख के करेंगे कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं, उसमें यही बेसिक मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं। अब जैसे अनफेयर कंपटीशन है, ठीक है, एक पार्टी को एडवांटेज है दूसरी को नहीं है, और वो अपने एडवांटेज की वजह से दूसरी को सप्रेस करने की वजह उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करके ला कहता है कि नहीं, दोनों को इक्वल स्टेटस पे ले आओ। व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वालिटी। ठीक। तो, तो ये सारी की सारी जो बैकग्राउंड है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है और थ्रू लॉ करना है कि कहाँ कहाँ ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ में पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन में अप्लाई हो रहा है और कहाँ कहाँ पे ये केस लॉज में अप्लाई, क्योंकि केस लॉ इज अ सोर्स ऑफ लॉ। सर एक बात जी, ये इस पर तो आप अभी कह रहे हैं कि मतलब हम कहाँ तक इस चीज को पहुंच रहे हैं कि चलो अल्लाह ने कहा कि ह्यूमन फर्स्ट, इंसान सबसे पहले, इंसान के राइट। तो हम जैसे पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हम मुझे तो नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी को कहीं भी हद तक फॉलो कर रहे हैं या कि उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, ये लॉ को कहीं भी फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। देखिए कानून की हद तक चलो हम चीज को लेके देखिए जाए। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज इक्वालिटी, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज डिग्निटी, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज कम्युनिटी। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है, अब जैसे
सोसाइटी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरीज करती हैं। जैसे मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, इनसे आज मैं डिस्कस कर रहा था कि मैरिजेस के ऊपर, मैरिजेस लॉ। अब इनके यहाँ मॉरल वैल्यूज कुछ और है, ठीक है, क्योंकि इनकी सोसाइटी एक टोटली सेकुलर लिबरल सोसाइटी है। अब हमारे यहाँ फिर इस्लाम, अब उनके यहाँ गे मैरिजेज एक नॉर्मल सी चीज़ है और उन्होंने एक कानून भी पास कर दिए। तो क्या हमारी सोसाइटी इस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? ठीक है। तो इसी तरह जो वुमेन डिग्निटी है ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ बेल के कॉन्सेप्ट में बताया है कि ये भाई बैठे हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई उठ के एक एफआईआर करवा दे और इनको एसएचओ साहब पकड़ के बिहाइंड द बार डाल दें और अदालत में जाए वो कहे मैं तो बेल ही नहीं देता। ठीक है। तो ये यही चीज तो बताना है ना कि इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, इट इज अगेंस्ट डिग्निटी, इट इज अगेंस्ट ह्यूमनिटी, और जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में पीस नहीं हो रहा। ठीक है। हर बंदा बेचैन है, क्यों है? ठीक है। बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सारी दुनिया में है। अब बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, दुनिया घूमते फिरते रहते हैं। ये तो नहीं है कि वो कोई दुनिया बड़ी है, सारे प्रॉब्लम्स हमारे कॉमन है, लेकिन यहाँ जस्टिस के इश्यू पे आके मार खा जाते हैं। तो आप भी कह रहे हैं, इसीलिए तो ये गुफ्तगू बहुत जरूरी ठीक है। है। तो डेमोक्रेसी तो है, लॉज तो बन रहे हैं, भाई वो उनकी लीगैलिटी क्या है? एप्लीकेबल कहाँ तक हो रहे हैं? देखें सुने, सबसे पहले तो लॉ को लीगल होना चाहिए, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, वो तो बात की बात है ना। पहले लॉ का हमने स्टेटस चेक करना है। क्या लॉ इज अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटस, उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन आती है। अब जैसे मैंने आपको एक ट्रस्ट एक्ट 2020 में फिल्म में उसकी सेक्शन 5 है, उस पे यही इशू था कि जी उन्होंने एक लीगल पर्सन यानी नेचुरल पर्सन को अलाउ कर दिया कि वो ये वाले प्रिविलेज जो है एंजॉय कर सकता है, जैसे टैक्स का है। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो नहीं कर सकता। तो अब एप्लीकेशन तो बात की बात है ना, पहले तो हमने उसका स्टेटस चेक करना है कि क्या ये जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, जस्टिस का, ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है तो इसको यहीं पे चेंज करो या खत्म करो। अच्छा सर, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा जी। क्या ये किताब जिसका आप नंबर जो मकसद बयान कर रहे हैं, ये जस्टिस दिलाने की तरफ हमें कोई रास्ता दिखाती है? देखिए ये बेसिकली मेरे जो नॉलेज में है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये आपको एक विंडो ओपन करती है, ठीक है, आपको, आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है, ठीक है, आपको एक दावत फिक्र देती है कि जब भी आपने लॉ को पढ़ना है तो आपने कौन सा कंसेप्ट पहले ज़हन में रखा, तब जाके आपको लॉ समझ आएगा। स्पेशली एक तो होती है ना बड़ी क्लियर सी प्रोविजन, एक होती है जिसको हम हार्ड केसेस कहते हैं, जिसमें एम्बिगुअस लैंग्वेज आ जाती है या वेग लैंग्वेज आ जाती है। तो ज्यादातर तो उसी के ऊपर इंटरप्रिटेशन होती है। जी। तो जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर ये वाले कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। ठीक है। स्पेशली जनरली तो सब पे ही है। ठीक है। तो उस टाइम अब आप एक सीनियर लॉयर, आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इशू क्या होते हैं कि लॉ के ऊपर इशू। तो पहले तो ये डिटरमिन करना है ना कि ये वाला लॉ ठीक है या नहीं, और किस तरह वो ठीक होगा जब तक वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हो। ठीक है। तो इसलिए वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वो इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैं आपसे एक पूछूं कि व्हाट इज जस्टिस, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब यूरोपियन लॉज में उसका कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ होगा, कोई अरब बैठा है उसमें मुख्तलिफ होगा, कोई ईरानी बैठा है उनके यहाँ जस्टिस का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ होगा। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं हमारे। तो पहले तो ये यही चीज बताता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं बट दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको हमने अंडरस्टैंड करना है थ्रू डिफरेंट लॉज, थ्रू डिफरेंट जजमेंट। जजमेंट ऐसे नहीं होती, उसमें ठीक ठाक रीजनिंग होती है, और रीजनिंग जो है वो सोर्स ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है।
कि उसमें वो कोशिश करते हैं अपने आर्गुमेंट को स्ट्रांग करने की, कि मैं अगर ये फैसला दे रहा हूं तो किस बेस पे दे रहा हूं। ठीक है। तो अब ये कहता है कि ये वाले पर्सन एब्स्ट्रैक्ट है, जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट है, इक्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। और कम्युनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। और मसलन पाकिस्तान में, अब आपने ये गौर से सुनना है, कादियानी भी रहते हैं, दे आर पाकिस्तानी। ठीक है। अब हमने उनको अलग कर दिया, बट दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसी तरह कुछ और भी ऐसे हमारे एथनिक इश्यूज हैं, जैसे आप बलूचिस्तान का इशू देख लें। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जब तक ये वाले जो ये कॉन्सेप्ट हम कहते तो रहते हैं, जस्टिस जस्टिस इक्वालिटी डिग्निटी, बट ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले तो ये हमने समझना है कि ये हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट, और हमारे वाली जो सोसाइटी है उसमें इनकी क्या वैल्यूज है, और इसको फिर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि वेस्ट में इसका क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है। फिर हमने इसको एट द एंड देखना है कि जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज हैं क्या ये उसके साथ मैच करती हैं, ये जो मॉडर्न लिबरल वैल्यू। ठीक है। तो पाकिस्तान में यही सारा मसला है कि लॉज को लोग वॉलंटरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी हमारी इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। कुछ कहते हैं, जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं हमारी मॉडर्न वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ आ गई? तो आप सब क्या कहते हैं, लॉ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए क्योंकि हम जिस कंट्री में अभी हैं, या कि लॉ को लॉ ही होना चाहिए कि वो वाकई ही इंसान के फेवर में हो और वही चीज है? तो देखिए, आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का रखना। देखें ये डिसीजन मैंने नहीं करना। ठीक है। नहीं, हम जनरल ये डिसीजन एक पूरी सोसाइटी ने कर। ठीक है। हम यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे मैंने देखे हैं जो लिबरल कॉन्सेप्ट हैं इक्वालिटी के, जस्टिस के, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब देखें इस्लाम में या अय्युहन्नास, ठीक है, तो इंसान को बराबरी की सदा पे देखता है, तो हमारे भी यही करता है। हमारा पाकिस्तान का लॉ भी, इंडिया का भी यही कहता है। ठीक है। ईरान का लॉ भी यही कहता है। ठीक। लेकिन आखिर ये जो हमारी अदालतें बनी हुई हैं, सोसाइटी में इतना डिप्रेशन है, क्यों है, किस वजह से है? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। और लॉ बेसिकली क्या होता है? ये बेसिक टूल है सोसाइटी को जो बेसिकली वैल्यूज देता है। ठीक है। तो अगर मसलन मेरे वैल्यूज के मुताबिक मेरे घर में, घर से स्टार्ट करते हैं, लॉज बने हुए हैं, तो मैं तो कभी एजिटेट नहीं करूंगा, मैं उसको वॉलंटरली एक्सेप्ट करूंगा। अब आप जाएं कुछ सोसाइटी में, मैं जैसे देखा है, लेट्स सपोज मैं आपको एक ईरान की मिसाल दूं, मैंने उनके घरों के ना कुछ प्रिंसिपल्स देखे हैं। वहां बच्चे को समझाना नहीं पड़ता तुमने कैसे खाना है, तुमने कैसे उठना है, तुमने कैसे वॉशरूम जाना है, तुमने मेहमान आ जाए तो उससे कैसे बात करनी है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो उनके मुआशरे के मुताबिक है। ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा झगड़ा है। मॉडर्न्स कहते हैं कि इस तरह उठें बैठें खाएं पिएं। ठीक है। जो रिलीजियस हैं, अब रात को हम इस्लामाबाद से आ रहे थे। अब मैं ये दूसरी दफा देख रहा हूँ। अब वो शायद मुझे लगता है पीछे वो बांग्लादेश से कोई लोग आए हुए थे, कोई वफद था उनका। अब वो सुबह 4:30-5 बजे ऊंचा ऊंचा कुरान की तिलावत कर रहा है। अब सारे सो रहे हैं। अब मैंने एक दफा देखा उसकी तरफ पीछे। अब मैंने कहा, अब इस तरफ भी इतनी बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे, तो मैंने कहा अगर मैंने इनको रोका ये तो फौरन लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। लड़ाई से बच सकते अब मुझे आप खुद बताएं, क्या मॉरली ये चीज ठीक है? मसलन तैमूर साहब वहां साथ वाली सीट पे सो रहे हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ उसको एक लीगल हमारे ट्राइबल नॉर्म हाँ तीसरी कैटेगरी बहुत सीरियस है, हाँ, बहुत जबरदस्त। तो ये चीजें जब हमने, लिबरल्स उसको नीचे करते थे। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूअस है, डिबेट है। लॉ स्टैटिक नहीं है, ये एक इज फ्लोइंग लाइक रिवर। ठीक है। तो उसमें फिर हमने देखना है कि जो चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है,
अब देखें जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिटरमिन है, क्योंकि वो ओवर्स द पीरियड ऑफ टाइम रिफाइंड होते गए होते गए होते गए। उनके फंडामेंटल इश्यूज बहुत सारे बेहतर हैं हमसे, ठीक है। अब हमारी क्योंकि सोसाइटी, अब आप पाकिस्तान की एज देखें तो एज कम्पेयर टू ईरानियन सिविलाइजेशन, एज कम्पेयर टू यस यूरोपियन, तो हम उसके मुकाबले में अभी बच्चे हैं। 6,000 10,000 साल हमारी है, जी। ये आप भूल रहे तो वो ये है कि यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और अगर ये चीज एड्रेस हो जाए, अब आप देखें, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाएं, अगर उसमें मिलावट हो, ठीक है, आप किस बेस पे चैलेंज करें हाँ, उस इशू को, मुझे बताइए। मसलन कंज्यूमर लॉ बना हुआ है, अब कंज्यूमर लॉ किस बेस पे बना हुआ है? हार्म ना, किसी को नुकसान ना, लॉजिक की सोच रहा हूँ, पता नहीं। तो बात यह कि जब रीजनिंग हम देते हैं ना, तो रीजनिंग में ही बहुत सारी डिबेट होती है कि भाई ये जो लॉ बनाया गया है, क्या ये उस वाले जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके मुताबिक है, और वो जो उस पार्टी ने कंडक्ट किया है वो बेसिकली उसने वर्ड्स की जो है ना खिलाफ वर्जी नहीं की है, वो उन वैल्यूज की है। आप जब जस्टिस देखते हैं तो आपने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर जस्टिस मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जाता है। जी। तो क्या हर जगह पर चीजें आप रिलीजन से तो नहीं लेते? कुछ जगहों पर जिस तरह नॉन रिलीजियस सोसाइटीज वहां पर किन प्रिंसिपल्स के ऊपर आप जस्टिस को डिफाइन करते हैं? देखिए, जो एक फंडामेंटल डेफिनेशन है ना जस्टिस की, वो ये है कि जो जिसका हक बनता है वो उसको दिया जाता है। खराबी सियासी निज़ाम में है या ठीक है अदालती निज़ाम में है? जी। जो बयान कर रहे हैं, जो हकूक जो नहीं पहुंच रहे शहरियों तक, जी जी। खराबी हमारे सियासी निज़ाम में है या अदालती निज़ाम में है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एज ए होल सोसाइटी हमारी एक मसला है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है, क्योंकि एक फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक है। अब वहाँ पे पिछले इलेक्शन में 3-3 हज़ार रुपए पे भी वोट वोट बिका है। एक साहब हैं, मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ रहा था, उसने 21 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, उसने खरीदा है वोट। फिर तो हर चीज ही मतलब बन अच्छा, वो जब पार्लियामेंट गया है उसने कहा भी मैं अवाम का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करके आया वो हूँ। बिजनेस है ना, तो बिजनेस लेके जा रहा है। समझा? जबरदस्त। तो ये इशू एज अ होल सोसाइटी का है, तो इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी डिग्निटी बस देखो नहीं समझेंगे कि भाई हमारी क्या डिग्निटी है, ठीक है। अब आप एक माशाल्लाह पढ़े लिखे लॉयर हैं, आप ये बताएं कि पुलिस वाला क्या कभी जिसके ऊपर एफआईआर हो जाए उसे मार सकता है? ये मुझसे सवाल किया है क्या मतलब? लोगों ने। यहाँ एफआईआर होती है ना, तो पुलिस वाले फौरन एक्शन लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब वो क्या करते हैं, पकड़ के ले आते हैं और मार कुटाई शुरू कर देते हैं, ठीक है, हालांकि आपके जो फंडामेंटल राइट उसके अगेंस्ट है ये बात। अब ये एक नाम बन चुका है आपके थानों में, और अवाम ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी वो पकड़ेंगे वो मारेंगे। अच्छा, अगर उनकी मार से बचना है तो फिर पैसे दो। समझा? तो बात ये है कि ये इसलिए मसलन अगर लॉयर्स को देखें, जब हमारा मसलन पुलिस के साथ वास्ता पड़ता है या जजेस के साथ, तो हमसे वो थोड़े से हेजिटेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वी नो समथिंग, ठीक है, हमें पता है कि भी अगर इसने ये हरकत की उस पर पर्चा होता है। तो यस, तो ठीक है, क्योंकि उसने एक फंडामेंटल राइट की खिलाफवर्जी की है। जी, जैसे मैं कुछ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आ रही है? देखिए, ये जो जस्टिस है, अब जितना मैं समझता हूँ इंसान पुराना है, जब से इंसान है तो तभी से हर सोसाइटी ने जो अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है।
लेकिन मैंने आपको एक कॉमन डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि जो हमने देखा है और इस चीज को वेस्ट ने भी एक्सेप्ट किया, जिसको आप मेरिट सिस्टम कहते हैं, कि क्यों एक कम्पिटिटिव एग्जाम रखा जाता है। बेसिकली उसको उस पैमाने पे लेके आया जाता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस के प्रिंसिपल के मुताबिक ये इस एल है इस वो पोस्ट के लिए। अब जैसे ईरान में प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी है। Sure. यस, ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप जिसको उठा के बना लें। तो क्या ये मुझे बताएं कि अब यहाँ पे क्या है, अब जो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, इट्स अ बिजनेस, ठीक है। हालांकि द ड्यूटी ऑफ अ पॉलिटिशियन इज टू सर्व द नेशन, not to do business. Okay, they are there on behalf of the people. They have to make laws on behalf of the people. Those laws which address justice, equality, dignity, and community. तो हम हमारे यहाँ तो सिस्टम ही सारा उलट हुआ ना। तो इसलिए जब तक हमारी जो कौम है वो ये बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं अंडरस्टैंड करेगी, तो उस वक्त तक हमारे जो लॉज हैं वो मजबूत नहीं होंगे। अब देखें कितनी वायलेशन, ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन हो रही है, बहुत सारी और चीजों की वायलेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अंदर से उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। सर जी, इसकी वजह ये भी तो है ना कि ये अंग्रेज ने मुसलत किए, ये हम ग्रो नहीं किए, हमारी शरीयत को साइड पे कर दिया। पहले नहीं मुल्क चल रहा था 1000 साल से, देखें सर, पे ही चल रहा। देखें जो अंग्रेज ने लॉज बनाए हैं ना, वो कह भी रहा कोई, हूँ कि उसकी जड़ें नहीं ना, इसलिए जाहिर सी बात है नहीं वो होगा यहाँ। तो आप अमेंड कर लें उन लॉज को। सर हाँ, ये हमारी कमजोरी है। हाँ, तो आप उनको अपनी सोसाइटीज की मॉरल वैल्यूज के मुताबिक ले। और पहले जो था ना लॉ, वो इजीली एक्सेसिबल था, क्योंकि एक एक महल्ला, गांव, शहर, यानी कि हर पूरी गवर्नेंस ही डिसेंट्रलाइज थी। ठीक। तो वो भी हमने लूज कर दिया, Yes. सेंट्रलाइज सिस्टम। यस, देखें ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है वैसे, कि दो स्टेप पे आपकी डेवलपमेंट भी होती है, दो स्टेप पे आपको जस्टिस भी मिलता है। और ईरान में कहते हैं ऐसे है कि वो ऐसे है, चाइना में भी है। यस, जस्टिस के वाले से बात यस, है। चाइना में भी है। तो अ, ये है कि ये चीजें समझना बहुत, देखें लॉज किस लिए बनाए गए? हम इंसानों के लिए जो इस फोर कॉर्नर्स ऑफ द पाकिस्तान रहते हैं। तो जब तक हमें नहीं पता कि भाई हमारे लॉज हैं क्या, ठीक है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता, तो मुझे ये बताएं आप इंसाफ कैसे लेंगे? शायद की बात है जी जी। कि चंद दिनों पहले ना हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी इंसानी बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही है ना, उसके जिम्मेदार हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं या आला अदालतों के जज साहबान हैं, क्योंकि उनका रिस्ट्रिक्शन तो है ना, पूरा पाकिस्तान है। बिल्कुल है। तो क्या इस स्टेटमेंट को हम सही समझें? देखिए किसी हद तक तो उन्होंने सच बोला है ये भी बड़ी बात है, उन्होंने सच बोला है। क्यों क्यों? देखें वो जिम्मेदार है कि देखें लॉज को इंटरप्रेट कौन करता है, उसके ऊपर जजमेंट पास कौन करता है। अब जैसे ये जो इशू बना हुआ था स्पेशल सीट्स का, जी जी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये किस बेस पे दिया गया था इसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पिछले साल वो एक लॉयर है इस्लामाबाद बेस्ड हैं, मज़ारी, क्या नाम है उनका, हाँ। ईमान मज़ारी, वो बड़ा चिफ्ती रही है। वो जो कैमरा से रिलेटेड एक लॉ आया है, ठीक है, मुझे बताएं ये किस बेस पे बनाया गया लॉ? और ये ड्यूटी है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। सही बात। तो फिर तो आप इनजस्टिस में यू आर द पार्टनर विद द पार्लियामेंट, ठीक है। क्योंकि लॉ मेकिंग अथॉरिटी किन के पास, या पार्लियामेंट के पास है या थ्रू इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारे मुल्क में दो ही हैं, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ठीक है, उन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट की है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। सर इसमें आपको नहीं लगता कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है हम पार्लियामेंटेरियंस को बहुत डिमीन करते हैं? जो क्योंकि आपको पिछले 2 साल में देखा था जजेस एक्चुअली री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ।
तो आपको नहीं लगता कि आप बजाय के यू आर जस्ट द इंटरप्रेटर्स ऑफ द लॉ, नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, तो आप एक कलेक्टिव कॉन्शियस को आप डिमीन करते हैं कि वी आर द अथॉरिटी एक्चुअली? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बात ये है, अगेन हम यही बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आइदर इट इज अ पार्लियामेंट और इट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई अपनी पर्सनल विल को इम्पोज नहीं कर सकता। ये जो ये एक फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जजमेंट पास होगी, इनके अकॉर्डिंग लॉ बनेगी, बस। और हमने कोशिश करनी है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की, और उसमें हम फिर एक क्रॉस टॉक करेंगे कि क्या वो वैल्यूज इस्लाम के मुताबिक हैं या लिबरल्स हैं वैल्यूज हैं। तो उससे एक बड़ी खूबसूरत हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी, और फिर हम कोर्ट्स की जजमेंट्स को कोट करेंगे कि उन्होंने ये कितनी कोशिश की है हमारे इस फंडामेंटल इश्यूज को बेहतर करने की। ठीक है ना सर? तो उसमें फिर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे अमेरिकन लॉज का भी, उनके चंद। अब जैसे एक छोटा सा केस मैं पढ़ रहा था, ये 1890 का केस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि पोते ने दादे को कत्ल किया। किस वजह से? दादे ने अपनी सारी जायदाद पोते को अ, जो है वो इनहेरिट कर दी, क्योंकि वाले दरमियान में नहीं था, फौत हो गया। पोता इमेच्योर था, उसने कहा ये बैठा हुआ है सर पे, उसने इसको कत्ल कर दिया। उसने कहा मैं वारिस तो बन चुका हूं, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। अच्छा, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, क्रिमिनल कोर्ट में, वहां पोता जीत जीत गया। हाई कोर्ट में गया, वहां पे जीत गया। सुप्रीम कोर्ट में वो हार गया। किस बेस पे हारा? यस, इसी मोरालिटी के प्रिंसिपल पे। अच्छा। ठीक है, ये इस केस को हम डिस्कस करेंगे, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी बैक इन 50s या 60s सुप्रीम कोर्ट के किसी केस में इसको कोर्ट भी किया गया है। अब देखें, जो लॉ की वर्ड्स हैं, जो एक लिटरल इंटरप्रिटेशन हम उसको लीगल टर्म में जो कहते हैं, उसके मुताबिक वो 100% हकदार है प्रॉपर्टी का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो उन्होंने कहा कि नो, फ्लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ये उसके अगेंस्ट, कि एक क्रिमिनल जो है वो हकदार नहीं हो सकता, और वो क्रिमिनल किस बेस पे हकदार नहीं हो सकता। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है मोरालिटी। तो इस वजह से फिर वो एक नया लॉ बन गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पोता या बेटा या चाचा चाचा और भतीजा या भांजा कत्ल करेगा, तो फिर वो वाला केस सामने आ जाएगा। वो बेदखल ही हो जाएगा Yes, वापस से yes. एक से ना सिर्फ बेदखल हुआ, बल्कि उसको सजा मिली। वो तो कत्ल की मिली, यस यस वो तो अलग बात है। यस यस। वो जा जैसे अभी आपने पहले बताया कि हर सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं किसी एक सोसाइटी की कोर्ट्स दूसरी सोसाइटी के जजमेंट्स को कोर्ट कर रही होती है, तो फिर ये क्या मुनासिब बनता है कि जब मॉरल वैल्यूज डिफरेंट है, या फिर देखें, जब हाँ, इट्स गुड क्वेश्चन। अब देखें, जैसे अब पाकिस्तान जो है वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक। अब लेट्स सपोज अमेरिका का लॉ बहुत ज्यादा डेवलप, ठीक है। अब हमने कोई एक नया इशू आ, जैसे मैंने आपको बताया कि यही जो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 5 जो ट्रस्ट एक्ट 2020 में, भाई आपने आर्टिफिशियल पर्सन को और जो नेचुरल पर्सन है उसके दरमियान एक डिफरेंस लेके आना, ठीक है। अब ये जो एक कंसेप्ट है, ये कोई मुख्तलिफ नहीं है। हमारे यहाँ भी उसी तरह कारोबार हो रहा है, वहां पे भी उसी तरह कारोबार। हमारे यहाँ भी नेचुरल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन है। मसलन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी, कारपोरेशन, और ये ट्रस्ट हो गए, और ये जो पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, ठीक। तो वहां पे भी हैं। तो फिर हम उनसे एक इनसाइट्स लेते हैं कि अगर वहां पे ये इशू कभी राइज हुआ है तो उन्होंने जजमेंट कैसे पास किया, रीजनिंग क्या दी, समझा? तो वो वाली जजमेंट्स हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, उनको हम लीगल टर्म्स में कहते हैं परसुएसिव जजमेंट। अच्छा
हाँ, अगर हम उसको लॉ बनाना चाह रहे हैं या उसको परsuasive के ऊपर फिर हम एक जजमेंट देंगे, वो फिर हमारा लॉ, वो बाइंडिंग भी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। इसी तरह एक मैरिज का भी इशू है। अभी रिसेंटली एक यूके में मेरे को केस हुआ है कस्टडी का, तो उसमें भी यही इशू था। हाँ, एक मेरे ख्याल में वहाँ इटली में मर्डर भी, बहुत सारे देखे ना, हमारे इश्यूज कॉमन है, वो वहां कत्ल करके यहाँ भाग रहे हैं। मोरालिटी का और अखबारों में भी आया है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जो सारी दुनिया में कॉमन है। कुछ वैल्यूज पे डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको गे मैरिजेस का बताया। तो क्या अगले 100 साल, जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ये इशू गया है, 10,000 इंडियन गेज ने पिटीशन दायर की थी, लेकिन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि भाई हमारी सोसाइटीज की ये वैल्यूज नहीं है कि हम आपको इजाजत दें। हालांकि वो सेक्युलर कंट्री है, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी अपनी इंडिविजुअल विल है, लेकिन आप इसको लीगल जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ठीक, तो इसी तरह डिफरेंसेस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मिटी है पूरी दुनिया। देयर आर डिफरेंसेस बट देयर आर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई थी उसका बेसिक मकसद भी यही था, लेकिन बाद में वो पोलिटिसाइज हो गई। तो जो डोमिनेंट बिग पावर्स थी वो फिर उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज करना शुरू हो गए। अगर देखा जाए जैसे अभी हमास और इसराइल की वार हुई है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। अब यूरोप अमेरिका बल्कि सारी दुनिया को चाहिए कि उसको पकड़ के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्राइब्यूनल्स में लेके आए। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया जिसपे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या तो नहीं लगता जो कंफ्यूजन है सेक्युलर के रिलीजियस होने की, जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो सकती तो आप कोई लॉज भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से ना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लिबरल जो वैल्यूज हैं वो इस्लाम में भी हैं। और इस पे बहस नहीं हुई ना सर, जी जी गहराई में नहीं हुई। जी। अब पता है मसला क्या है पाकिस्तान में? यहाँ के लोगों में ना सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं डिबेट करने की। वो फौरन लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, उसको अना का मसला बना लेंगे, जिसकी वजह डिबेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes. बेशक आपके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको आप एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें। यहाँ हम उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, Emotional वो बात कहाँ से नहीं चली जाएगी। अब जैसे एक श्रीलंकन था, उसको बेचारे को बेगुनाह मारा गया, ठीक है, बाद में पता चला तो वो वर्कर्स का पर्सनल इशू था, उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट था ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसको रिलीजियस बना के लोग जज्बाती हो गए। और अब बताएं उसका मर्डर का कौन जिम्मेदार है? और जब ये वाला इमेज दुनिया ने देखा है तो फिर आपकी एज ए होल सोसाइटी का क्या, ठीक है, ओपिनियन जो भी होगा सब बेहतर जानते हैं, ठीक है। अब मैं हैरान हूँ कि ये दोस्त कह रहे थे कि यार इतना ज़बरदस्त आपके पास हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन मुझे कोई बाहर से जो नहीं फॉरेनर्स नहीं नज़र आ रहे, टूरिस्ट सिर्फ एक मेरे ख्याल में हमें कोई नज़र आ रहा है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि वो कहते हैं कि बड़ी अजीब ओपिनियन है पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में। तो लॉज जो है ये एक बेसिक टूल है टू रन द सोसाइटी। लॉज में आपकी जो वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया जाता है, और जब तक उन वैल्यूज को हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू लॉ, डिफरेंट लॉज में कैसे कैसे वो वैल्यूज हैं, तो तब तक हमारी जो है ना वो ये सारे इश्यूज जो हैं ये सर कि ये तजाद नहीं खत्म हो सकता जब तक हम डाइवर्सिटी को ना मौजूद खाते रखें ना। जैसे थोड़ा सा इमरान खान ने शायद कहा भी था कि जो लोकल लॉज है उनको भी तकबीयत दें, जैसे इंडिया ने पंचायत सिस्टम को सपोर्ट किया, वो भी तो इलॉजिकल है ना कि इस्लामाबाद बैठ के फैसला करेगा क्या सही है। देखिए सर, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, बेसिकली जब अयूब खान की हुकूमत से ये शुरू हुआ, बेसिक बीडी जो सिस्टम होता था, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम उन्होंने मुताबिक करवाया। तो उस पे तो यही था ना कि जो इश्यूज हैं वो डोर स्टेप पे रिजॉल्व।
लेकिन फिर यहाँ पे जो जो फिर गवर्नमेंट चेंज होती रही, सारे फिर अपनी मर्जी से। I think ये डायलॉग के हवाले से ही कह रहा हूँ कि इस तरह कोई अच्छा सोल्यूशन निकल यस। इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हाँ। उन्होंने जो डेवोल्यूशन प्लान दिया तो उसमें थोड़ा बहुत था कि ग्रास रूट लेवल पे इदारे बनाए, उसमें भी लोगों की कुछ सुनवाई होती थी। यस। तो इसलिए ये लॉज, ये नहीं कि भाई कोई बंदा आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो भी मेरा कोई कंसर्न नहीं, नो। आपके गिर्द लॉ घूम रहा है, और जब आपका कोई इशू रेज होगा तो तब आपको पता चलेगा। तो उससे पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, बहुत खूब। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ काम करने से पहले आपको पता हो कि भाई, अब जैसे हम लॉयर्स हैं हमें पता होता है कि भाई ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने इस किताब का बड़ा अच्छा तारुफ पेश किया और उसमें जो मकासद बयान किए या उसमें जो भी ऑथर ने माशरे की जो नाहमवारियाँ उनको पकड़ने की और नबज़ का जो तरीका बताया है, हम उससे रहनुमाई लेंगे इंशाल्लाह। और ये पहला सेशन था जी, ये अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह, चलो, और हस्तोनीस में इंशाल्लाह अगले सेशन का हम डेट का भी अनाउंस कर देंगे। excellent. बहुत शुक्रिया।